Good morning, dear students. How are you all? Dear students, today we are going to start with a new lesson, weather and seasons. In this chapter, we are going to see how to analyze the different forms of water. Do you know water has forms? Water is available to you in different forms. We are going to explore it. हम इसको explore करेंगे. Then we are going to see how weather changes and how it affects us. Weather किस तरह से change होता है और किस तरह से ये हमारे को affect करता है. Next we are going to see the factors which cause the change in weather, like sun किस तरह से weather को change करता है, rain के कारण से कैसे changes आते हैं, wind के कारण से और clouds के कारण से. This is all we are going to see in this lesson, that is weather and seasons. So let's get started. Wow, wonderful. Weather and seasons. Let's get started. बच्चे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि what is weather, क्योंकि ये दो चीज़ें हैं जो हम लोग बहुत एग्जामिन करते हैं इक्वली. एक वेदर होता है और एक क्लाइमेट, और हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है. पहले हम वेदर देखेंगे, फिर क्लाइमेट देखेंगे. बच्चे, आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. आपको पता है जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं वो प्लैनेट अर्थ कहलाता है, और हमारा जो अर्थ है इसके इट्स सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर. इस पर एक लेयर है एयर की और उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. और कई बार आपने देखा होगा यार एयर इज़ वेरी हॉट, और कई बार आप देखते हो कि यार इट्स वेरी कोल्ड, राइट. सो यहाँ पर जब एयर के अंदर वेरिएशंस आते हैं, चेंजेस आती हैं, कभी हमारे को एयर ठंडी लगती है, कभी हमारे को एयर हॉट लगती है, इट इज़ नोन एज वेदर, राइट. सो वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग from day to day and sometimes from 1 hour to another. Now bacha, just see to it. Then what is climate? The same type of weather for a long period of time is known as climate. Is that clear? Now bacha, let's see. Seasons. What do you understand by seasons? When weather remains the same for a long period, we call it a season. We have some months when it is very hot. आपको पता है ना, आप लोग जैसे कि इट्स इज इन द मंथ ऑफ मे, अप्रैल, मई, जून, वेरी वेरी हॉट. वी से इट्स अ समर सीजन. देन अगस्त, सितंबर, इट इज़ रेनी. वी से इट इज़ अ रेनी सीजन. Then September, October, November, we say it is autumn. Then we say it is winter season, and finally we say it is spring season. So weather keeps on changing, and when weather keeps on changing, it leads to seasons, right? अब आप लोगों को कभी तो बहुत ठंड लगती है, कभी बहुत गर्मी लगती है. We also have spring and autumn when it is neither too hot nor very cold, right? So you had already learnt about seasons. Now bache, let's discuss in detail about the states of matter. I told you whenever I talk about water, बच्चे हमारे को water के बारे में बात करनी है. तो water की ना 3 forms होती हैं. Water is available to us in solid, water is available to us in liquid, and water is available to us in gas. Let's try to understand. जब हम वाटर को कूल कर देते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो वहाँ पर हमारे को आइस मिलती है. तो वो आइस इज़ अ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, राइट. जब आप टैप्स ओपन करते हो तो जो वाटर निकल कर आता है दैट इज़ इन इट्स लिक्विड फॉर्म. और जब आप वाटर को गैस के ऊपर रखकर हीट करते हो तो उसके जो वेपर्स आते हैं बच्चे, दैट इज़ इन द गैस फॉर्म, राइट. सो वाटर की कितनी फॉर्म्स है? 3 फॉर्म्स है. रिमेंबर इट अगेन: सॉलिड, लिक्विड and gas. Now bache, let's see liquid, gas and solid. यहाँ पर ये कैसे changes आती हैं? The changes takes place only due to heating or cooling. Is that clear? जब हम heat करते हैं या जब हम cool करते हैं तभी ये changes in water occurs, right? So bache, let's see to it. Water is present in 3 forms: ice, water and water vapor. Water changes its form either by heating or cooling. A lady is heating some water. थोड़े टाइम के बाद वो लेडी चले जाती है और वो वाटर को वहीं भूल जाती है.
आफ्टर सम टाइम्स व्हेन शी कम्स शी सीज वाटर का लेवल तो बहुत कम हो गया एंड वाटर वेपर इज कमिंग. देखो कितना डिफरेंस आ गया. पहले वाटर ज़्यादा था और अब वाटर कम हो गया. You know why? Because water exists in three forms in nature: ice, water, and water vapor. When I say water, water is a liquid form, ice is in the solid form, and water vapor is in the gaseous form. Now, dear students, you should remember, वाटर अपनी फॉर्म को या हीटिंग से चेंज करता है या कूलिंग से चेंज करता है. डियर स्टूडेंट्स, सी ऑन अ प्लेट आई हैव सम आइस क्यूब्स. अगर मैं इन आइस क्यूब्स को बाहर रख देती हूँ तो ये आइस क्यूब्स अपना जो कि सॉलिड फॉर्म में है अपना फॉर्म चेंज कर लेंगी एंड दे टर्न इनटू अ लिक्विड स्टेट एंड दिस लिक्विड स्टेट इज़ नोन एज वाटर. अब जब इस लिक्विड को मैं हीट करूँगी, then this heat turns out into the vapor, and when the heat starts rising up, it turns out into a vapor. This is particularly again changing its state, and that is the gaseous state. अब वाटर ने कौन सा स्टेट ले लिया? गैशियस स्टेट ले लिया. वाटर यहाँ पे इवेपोरेट हो रहा है. इस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन भी बोलते हैं. See how the water changes, isn't it? अब ये देखो, स्टीम्ड वाटर के ऊपर जब मैं एक लिड रख दूँगी, एक लिड रख दी, इसको कवर किया और थोड़े टाइम बाद जब मैंने इस लिड को उठाया, स्टीम अगेन चेंजेस इनटू वाटर, राइट? दिस यू कैन डू प्रैक्टिकली ऑल्सो. पता है कैसे? आप लोग एक टिफ़िन लो, बिल्कुल गरम गरम, उसके अंदर हॉट फूड होना चाहिए. टिफ़िन को बंद कर दो एंड देन आफ्टर सम टाइम टेक आउट दैट लिड. आपको पता है क्या दिखेगा? ड्रॉप्स ऑफ वाटर, एंड दिस ड्रॉप्स ऑफ वाटर इज नोन एज कंडेंसेशन. नाउ बच्चे, लेट्स सी द थर्ड फॉर्म. सी, इफ़ आई हैव सम वाटर और मैं एक आइस ट्रे के अंदर वाटर को अपने रेफ्रिजरेटर में डाल देती हूँ एंड आई वॉन्ट टू गेट अ सॉलिड स्टेट आउट ऑफ इट. यू नो कैसे मिली मुझे? जब मैंने इसको डीप फ्रीज़र में डाला, थोड़े टाइम बाद व्हेन आई चेक इट आउट, इट टर्न्स इनटू अ सॉलिड एंड दैट सॉलिड फॉर्म इज नोन एज आइस. आपको भी आइस अच्छी लगती है ना वाटर के अंदर? कूल कूल, इजंट इट? सो दिस इज नोन एज फ्रीजिंग. व्हाट डू यू कॉल? फ्रीजिंग. अगेन आइस मेल्ट्स ऑन हीटिंग एंड टर्न्स इनटू द वाटर. जब हम आइस को मेल्ट करते हैं तो ये वाटर में मेल्ट हो जाती है. वाटर को फर्दर हीट करते हैं तो ये वाटर वेपर, और वाटर वेपर जब कंडेंस हो जाता है ऑन कूलिंग, अगेन टर्न्स इनटू द वाटर. Isn't it? Very interesting. So these were what? The three forms. Do you know now? Understand how water changes its form by heating or by cooling. So water changes due to the change in its temperature. So dear students, now we are going to discuss about the water cycle. You know, वाटर साइकिल को हम लोग हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी बोलते हैं. सबसे पहले लेट्स सी व्हाट इज वाटर साइकिल. व्हेन अ वाटर मूव इन अ साइक्लिकल मैनर इवन बिलो द अर्थ एंड इवन अबव द अर्थ, इवन इन आवर एटमॉस्फेयर, इट इज नोन एज वाटर साइकिल. अब हम इस वाटर साइकिल को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. सी, आपको पता है सन की बहुत हीट होती है. तो जब इतनी ज़्यादा हीट होती है तो वो हीट जब हमारी वाटर के ऊपर पड़ती है, जो कि हमारी सी बॉडीज़ में अवेलेबल होता है, तो वाटर इवेपोरेट होने लग जाता है और वाटर वेपर्स के फॉर्म में. आपको पता है कि इवेपोरेटेड वाटर कहाँ पर जाता है? हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे क्लाउड्स में. दैट इज़ इन द ट्रोपोस्फेयर. वो आप आगे वाली क्लासेस में पढ़ोगे. आपके लिए वो वाटर कहाँ चला गया? क्लाउड्स के अंदर. वाटर के ड्रॉपलेट्स क्लाउड्स में चले जाते हैं और ये ड्रॉपलेट्स डिपॉजिट होते जाते हैं क्लाउड्स के अंदर. जब क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाते हैं, देन क्लाउड्स स्टार्ट सेंडिंग रेन डाउन. ये वाटर हमारी अर्थ पे दोबारा से आता है इन द फॉर्म ऑफ रेन और इन द फॉर्म ऑफ स्नो. स्टूडेंट्स, डू यू नो दैट
Some of the water goes back to the oceans and some of the water gets there inside the earth in the form of groundwater. So dear students, this process जब evaporation होती है from the seas, from the rivers, due to the heat of the sun, water vapors बनते हैं. जो water vapors on cooling forms the clouds, and then finally from that clouds जो बहुत heavy हो जाते हैं due to excess of water vapor in it, they start coming on the earth in the form of rain or in the form of snow. तो ये प्रोसेस जब चलता रहता है, like water first evaporating, then condensing, clouds formation, then again water coming down on the earth. So dear students, this is known as the water cycle, right? And here in this water cycle, हम लोगों ने देखा कि water is present in all its three forms: ice also, water also, and water vapor also. Isn't it interesting? Water cycle is really interesting to learn. Now I will take this up in detail from your book. So dear students, let's discuss about the water cycle. When the sun rays fall on the rivers, lakes and seas, आपको पता है ना जब sun ray कहाँ पे fall होता है? Rivers पे, lakes पे, seas पे, जहाँ पे water अपने liquid form में available है, the water gets heated up. Water बहुत ज़्यादा heat हो जाता है, जिसके कारण से water vapors form हो जाते हैं. These water vapors are responsible for the formation of clouds. इन वाटर वेपर से क्लाउड्स बनते हैं. बच्चा जब ये वाटर वेपर्स कलेक्ट होते जाते हैं तो क्लाउड्स थोड़े हैवी हो जाते हैं, राइट? अब जब बहुत हैवी हो जाते हैं देन रेन स्टार्ट्स फॉलिंग. सो द वाटर फ्रॉम द रेन इज देन कलेक्टेड इन द सीज और दे गो इनटू द अर्थ और हमारे को ग्राउंड वाटर के फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है. दिस साइकिल ऑफ चेंज इन द फॉर्म्स ऑफ वाटर is called water cycle. See, rivers, lakes में water कैसे available था? Liquid form में. फिर जब heat हो गया तो water किस form में available हो गया? Gaseous form में. और फिर जब वो यहाँ पर droplets of water दोबारा से बन गए, collect हो गया clouds में और फिर clouds से नीचे fall होने लग गया, तो either in a liquid form or in a snow form. और snow कौन सी form होती है? Solid form. सो वाटर जब अपनी यहाँ पर साइकिल के अंदर जब अपनी फॉर्म्स को चेंज कर रहा है एंड इट कीप्स ऑन मूविंग अगेन एंड अगेन इज नोन एज अ वाटर साइकिल और वी कॉल इट अ hydraulic cycle. Isn't it clear to all of you? I hope now this water cycle might be perfectly clear to you.